So just wanted to show how was the performance in the previous test. Let me take you to this Google Drive. In that Google Drive, I have already shared all these links, means all results and everything is there with you. So bootcamp relevant material, and these are the videos which I'm uploading, and certificates and everything is there. Apart from it, quiz for the Excel, and yesterday you will have attempted this one. So this is the result. So day by day, means number of people who are attempting this quiz is reducing. So even if you have means any engagement, then also try to do all these things. This is the scorecard. Look at this particular. Let me increase its font size. This is your score. Let me change the color. This one. So many of you are doing really well. Means your marks are improving and you are getting 6 out of 8. Most of the people have got 6 out of 8. Today, if time will permit, I'll do some analysis on this data as well. In data पे कैसे काम किया जाता है, that I'm also going to show it through data visualization techniques. इसको Excel में convert करेंगे, download करके, and then we'll work on that. So, Sir, will you check whether I have attempted or not? Tell me your name. Ayush Kumar Jaiswal. Ayush Kumar. Sir, Yes. I see there. Yes, it is there. Look at this. Sir, but 8 out of 8. I am not attending the Google Drive. No, means whatever things you attempt on that Google form, entire database is going to be converted into Google Drive. That's what I was asking. How many of you are acquainted with this technique of making Google form and how that Google form data is going to be converted in Google Sheet? And from Google Sheet, you can download it. Means there is an option. You can go here and download it. It will give you an Excel file. Look at the extreme right hand corner, above right hand corner, and you'll get the result in Excel format. And this is the link. So, but since you haven't added me in the Google Drive, the one where all the data was. I have added each one of you who have registered through a valid mail ID. Means it is in the system itself. I'm not typing anything. You have registered through a valid mail ID. You must have been added to that particular group. If your mail ID is wrong, then chances are there. But then also you can drop a personal message to me with your mail ID, and I'll add you in that particular group. Yesterday also I have shared that link on this WhatsApp group. For video, I have already shared that. I get the folder of video, but not for the worksheet for practice purpose. Okay. Drop me a mail. I'll add you. Okay. Okay. So this was just a sensitization part which I wanted to share it with you. Yesterday we have done the first part of basic functions. What we have seen yesterday is sum, average A, count A, median, sum product, sum square, then count blank, then large and small array. These were absolutely basic things, and people have already covered all these things. Now, today we are going to cover, I have a list of things which I'm going to cover today. Formula and functions we are going to cover, then data visualization I'm going to cover, data validation I'm going to cover, and if time will permit, printing options we are going to see. So all these things we are going to cover. From yesterday lessons, I'm just going to continue with this. Now things are going to be bit difficult, means the ease level is going to increase because I am considering you as a beginner certified Excel trainer. Means Excel experts are there. You have already completed your beginners module. So now intermediate level, we are going to increase little bit of, means I'll try to make it as easy as possible. Then also you have to be very cautious to see these
commands. So first I'm going to start with is even. Is even क्या करता है कि आपके पास कोई नंबर है, वो इवन है या ऑड है. कई बार बहुत बड़ा नंबर सीट है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इसमें से कितने इवन होंगे कितने ऑड होंगे. तो उसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज करोगे. जस्ट कॉपी इट, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू इन अ सेपरेट वे. एंड रिमेंबर to implicate this value and number formatting, and whatever link it is going to come up with, it is not going to take it on this particular location. So in this we are just going to type is even. is even is even is जैसा जो कमांड होता है वो is number, is text, is odd, is even ऐसे करके आपकी वैलिडिटी को चेक करता है उसमें कि वो फॉर्मूला है, टेक्स्ट है, नंबर है, इवन है, ऑड है. तो ऐसे कई सिर्फ इज आप टाइप करेंगे तो इज एरर, इज इवन, इज फॉर्मूला, इज लॉजिकल, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉन टेक्स्ट, इज नंबर, इज ऑड. सो यू आर गोइंग टू गेट all these things through is option. So right now my intention is to check is even. is even को कैसे करेंगे? is even मैंने टाइप किया, नीचे फंक्शन आ गया, डबल क्लिक किया and I'm going to give the range and I'm going to close the bracket. अब तो ये फॉर्मूला इंप्लीकेट करना सबको आ गया होगा कि फॉर्मूला को कैसे इक्वल टू लगाते हैं. फर्स्ट फ्यू लेटर्स को टाइप करते हैं, उसके बाद रेंज देते हैं, रेंज को क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं. ये सबको अब लगभग क्लियर हो गया होगा. Yes sir. So this is the beauty. इसको डिलीट करो and we are going to type is even and is even, then give a range, copy. अब ये वैल्यू एरर दे रहा है. this particular thing is 5, then drag it, छोटा प्लस साइन बनेगा डॉक्टर वाला. वैल्यू एरर, that means some formula is being Am I audible right now? Yes audible. Yes, sir. Network issue. I've typed this. Is even, delete it. कहीं से फॉर्मूला इंप्लीकेट कर रहा है. सिंपल सा मैंने यहां पे लगाया is even b5 फंक्शन and I have dragged it. तो अगर आप is even लगाते हो, इससे बढ़िया आप जैसे कभी भी गड़बड़ होने के चांसेस या आपको लगता है डाउट है उस फॉर्मूला फंक्शंस में लगाने में, सीट में कोई एरर ना आ जाए, तो आप सबसे बढ़िया इसको मौका दो. is even, एंटर, इट विल गिव यू द फॉर्मूला. उसके बाद जहां सर स्क्रीन शेयर नहीं है. ओके 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 जस्ट अभी विजिबल है? अब विजिबल है? सर अभी लोड ले रहा है. विजिबल है ना? ये कुछ लोग हैं तो मींस इफ पीपल विल कीप ऑन एडिंग इनटू द ग्रुप, वो कई बार मुझे मैं उस लोड के वजह से बाहर चला जा रहा हूँ मीटिंग से. तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम फॉलो कर लोगे, इफ विल कम ऑन टाइम, थिंग्स विल मूव स्मूथली. रिदम थोड़ा खराब था. इन बिटवीन आई हैव टू गो इनटू द वेटिंग रूम एंड आई हैव टू कीप ऑन एडिंग दोस पीपल, तो उससे फ्लो भी टूटता है. जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग, इफ यू आर coming to this particular program, try to be there on time. I add everything, I share those meeting links on time, no problem at all. But then also if have some engagement, you can come down at any point of time. थोड़ा सा रिक्वेस्ट है. देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने फॉल्स लगाया था, फॉल्स क्यों आ रहा था? इज इवन करके जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया B5 पे, तो ये ऑड नंबर इसलिए इसने फॉल्स दिया.
अगर ये इवन रहता तो ट्रू देता, लेकिन इसको दूसरे तरीके से अगर चेक करना चाहते हो, यूज दिस वन, इसको आप कमांड दो इज इवन, गो इज इवन आपके पास आ जाएगा, इम्प्लीकेट इट, और इज इवन के लिए मुझे वो रेंज देना है, जिस वो नंबर देना है जहां पे मैं इवन और ऑड जानना चाहता हूं। इसने फॉल्स दे दिया, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, सेम सेम वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों आ रहा है कि ये दोनों नंबर इवन और ऑड को ट्रू और फॉल्स तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल्स आर देयर, टेक्स्ट आर देयर, तो टेक्स्ट इस फंक्शन को नहीं लेता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स न्यूमेरिक वैल्यू को देगा। अगर वो इवन होगा तो ट्रू बोलेगा, ऑड होगा तो फॉल्स बोलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे इम्प्लीकेट कर रहे हो, तो ये तो सिंपल ऑड इज ऑड लगाया, लेकिन इज ऑड लगाने का मैंने फंक्शन वाला आपको बताने जा रहा हूँ। फंक्शन वाले में अब आप खुद से बताना इज ऑड, और बार बार रिपीट करवा रहा हूं प्रोसेस, ताकि आप खुद से इसको इम्प्लीकेट कर सको और आपके आंख के सामने बार बार ये चीजें जाएंगी, देन यू विल बी इजिली एबल टू यूज दिस। मैंने एंटर किया, अब ये 5 ऑड है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ ऑड इवन जानते होगे ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। हाँ सर हाँ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स इवन में आते हैं, और बाकी नंबर्स ऑड्स में आते हैं जो डायरेक्ट डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पे 5 ऑड हो गया, 10 इवन हो गया। तो यहाँ पे मैं जानना चाह रहा था ऑड के बारे में, तो 10 हो गया फॉल्स, 5 हो गया ट्रू। लेकिन ये देखो टेक्स्ट के अलावा, इसलिए मैंने डिविजिबल नंबर्स रखा या टेक्स्ट रखा, तो उनको ये रीड नहीं करता, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का ट्रू फॉल्स करके आपको निकाल देगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अब इज फॉर्मूला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इज फॉर्मूला को अगर आप कहीं भी इंप्लीकेट करना चाहते हो, सिंपल फॉर्मूला वाला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, इस फॉर्मूला लगा के उसको मैंने ड्रैग कर दिया, तो फिर सब पे फॉर्मूला लग गया, लेकिन ट्रू और फॉल्स। और मैं जो भी आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फंक्शन वाला रिपीट कर रहा हूँ। फंक्शन वाले में आपको क्या टाइप करना है, इज फॉर्मूला, एंटर, आपके पास फॉर्मूला सामने आ जाएगा। इस फॉर्मूला का आप वैल्यू दोगे, ओके करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू ड्रैग इट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स कर रहा है। ये फॉल्स यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट डेट है, यहाँ पे डायरेक्ट डेट है। यहाँ पे ट्रू है, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन है। अब यहाँ पे इज किलिंग फॉल्स है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला है। यहाँ पे बूट कैंप टेक्स्ट है, इसलिए इसने फॉल्स दिया। लेकिन कहीं पे फॉर्मूला है, उसको चेक करना है, तो ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन कैसे चेक करेंगे आप? सिंपल साइड, सिंपल एक एक जस्ट 15 15 15 यहाँ पे इक्वल्स टू सम, डबल क्लिक, सम क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे इसका चेक करो, इज फॉर्मूला दिस वन, एंटर। आ गया? चेक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? अब मैं इसी के नीचे सिंपल डिजिट में 45 लिख दूंगा, और इसी वाले को नीचे खींचूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर सेल में पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है, वहां पे उसको चेक करना है, देन आई एम गोइंग टू यूज इज फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। So keep a very close look on the screen, because ultimately जैसे मतलब स्क्रीन का मूवमेंट चेंज होगा और आप दूसरे स्क्रीनशॉट पे जाओगे, देन यू लूज द ट्रैक। एक एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। इज इवन हम लोग ने किया, इज ऑड किया, इज फॉर्मूला किया, अब इज नंबर ही टेक्स्ट करेंगे। कहीं पे कैसे नंबर को चेक किया जाता है, कैसे टेक्स्ट को चेक किया जाता है। यहां तक में किसी को दिक्कत? हमने इवन चेक किया, ऑड चेक किया, एंड वी हैव चेक्ड इज फॉर्मूला। उस सेल में कोई फॉर्मूला है, देन दिस कमांड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। और इसका दूसरा तरीका मैंने आपको फंक्शन की से भी बता दिया। फंक्शन की वाला बताया था आपको, याद है ना? फंक्शन वाले में सिंपल जाके आपको इस फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, और वो आपको रेफरेंस में बता देगा कि आपका ये पर्टिकुलर सेल फॉर्मूला है या नहीं। इसके बाद आप जानना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर, आप कई बार देखना, कई बार क्या होगा कि नंबर आपको दिखेगा लेकिन वो नंबर होगा नहीं। इस पे आप निकाल के दे सकते हो, इज नंबर, double click on this, then give the value, or select only one number, and then we are going to drag it. False, this is text,
इट इज विजिबल टू एवरीवन, ये सबको दिख रहा होगा, ये सबको टेक्स्ट दिख रहा होगा। अब इस Yes, sir, फॉल्स yes, sir. को Yes, sir. देन वी आर गोइंग टू ड्रैग इट, मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, वहां पे तो डिजिट डिजिट है, लेकिन इन दोनों में चेंजेस देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको नंबर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये फॉल्स बता रहा है। क्यों फॉल्स बता रहा है? एनी आइडिया? कैन आई मूव अहेड? चलो यहाँ देखते हैं। तो उसके बाद टेक्स्ट वैल्यू। वेरी गुड, वेरी। अब सिंपल टेक्स्ट वाला तो टेक्स्ट दिखता है, कई बार क्या होता है 15, 14 और इसी से नंबर एरर आता है, जो वैल्यू एरर आता है किसी फॉर्मूले में, सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि वहां पे टेक्स्ट लगा हुआ होता है। देन 25, यहां तक तो ठीक है। अब मैं दो फॉर्मेट का यहां से जाके मैंने जो नंबर फॉर्मेट है वहां पे जाके टेक्स्ट कर दिया, और टेक्स्ट को मैं 25 एंड 25 कर रहा हूं। अब एक इंटरेस्टिंग आपको तो यही इंडिकेशन यहीं से मिल जाएगा, इफ इट इज राइट अलाइंड सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट बोल रहा है इट इज नंबर, इफ इट इज लेफ्ट अलाइंड सिस्टम बोल रहा है बाय डिफॉल्ट इट इज अ टेक्स्ट। तो अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, क्या लगा रहा हूं, इज नंबर, डबल क्लिक ऑन इट, गिव दिस वैल्यू, एंटर, ड्रैग, छोटा डॉक्टर साइन, ड्रैग करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब इन दोनों में मैंने क्या कर दिया था, टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया था, तो इसने क्या दे दिया कि ये नंबर नहीं है। किसी को डाउट? No, sir. हाँ, थोड़ा ट्रैक करते रहना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओगे तो मैं थोड़ा और। अब इसी को यहीं पे इज टेक्स्ट कर लेते हैं, इज टेक्स्ट है। अब इनको ही मैं इस वैल्यू को दे दे रहा हूं और इनको सिंपल एंटर कर रहा हूं। तो अब टेक्स्ट है तो ये तो नंबर है, यहाँ तो फॉल्स देगा ना। अब इसी को ड्रैग कर दो तो जस्ट उल्टा रिजल्ट आएगा, जहां जहां नंबर थे उसके जगह पे टेक्स्ट वाले में फॉल्स आएगा, और जहां पे टेक्स्ट था उसके जगह पे ट्रू आएगा। तो ये जो नेक्स्ट वाला है यही कर रहा है। ये देखो, अगर ये टेक्स्ट है, इज किलिंग टेक्स्ट है तो वो ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा, ये नंबर्स को फॉल्स देगा, लेकिन दिस वन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो रिफ्लेक्ट करता है वो एक्चुअली नंबर है नहीं, दैट इज टेक्स्ट। इसी वजह से तो कई बार क्या करते हो, फॉर्मूला इंप्लीकेट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि नंबर है या टेक्स्ट है। इन दैट केस, if you are going to implicate any text value and you are going to multiply, add, subtract, whatever mathematical functions you are going to do, and if you are doing it with a text function, ultimately you are not going to get any result, वो वैल्यू वाला एरर दे देगा। शुरुआत में मैं लगा रहा था ना वैल्यू वाला एरर, देख रहे हो यहाँ पे ये वैल्यू एरर दे रहा है ना, उसी तरह से आपका वैल्यू एरर दे देगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीकेट एनी फॉर्मूला और फंक्शंस। तो आपको याद रखना, कहीं पे अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फर्स्ट टेक्स्ट चेक कर लो या नंबर वाला फॉर्मेट चेक कर लो, तुरंत पता चल जाएगा। और वहां पे अगर है तो उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसको रिमूव करके। उसको फर्स्ट नंबर में, जैसे यहाँ पे पहले आप जाओ, टेक्स्ट को नंबर में सेलेक्ट करो, नंबर में आप सेलेक्ट कर दिया तो इसके डिजिट को फिर से चेंज करो, और देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। आर यू एबल टू सी दीज चेंजेस? यस सर। दिख रहा है डिफरेंस? तो ये हिडन चीजें होती हैं जो आपको एक्सेल में काम करने में प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग। ये छोटी छोटी चीजें जब आगे बहुत ज्यादा यूज करने लगोगे तो ये आपको हेल्प करेगा कोई भी फॉर्मूला और फंक्शंस लगाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, इज इवन, इज ऑड, इज फॉर्मूला, इज नंबर, इज टेक्स्ट। ये हर सेल में जो चीजें हैं वो टेक्स्ट है, नंबर है, इवन है, ऑड है, वी हैव ऑलरेडी चेक। नाउ कम्स एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या करता है, फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको एवरेज इफ का फॉर्मूला जैसे लगाना है, तो एवरेज इफ जब लगाओगे तो एवरेज इफ में आपको कंडीशंस में किसी पर्टिकुलर नंबर का, जैसे यहाँ पे कितने 2012 वाले नंबर दिख रहे हैं ना, कितने दिख रहे हैं 2012 वाले, कई नंबर सारे दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये एवरेज मुझे उन ईयर्स का निकाल के दे जिन ईयर्स का किसी का माइक खुला हुआ बेटा, थोड़ा सा close your mic, otherwise some disturbance is coming, and this is value। अब यहाँ पे देखो, मैं ईयर का वैल्यू जानना चाहता हूं, लेकिन किसी स्पेसिफिक ईयर का जो कॉमनली इस पूरे डेटा में अवेलेबल है, और मैं उसका एवरेज निकालना चाहता हूं। मैं उसका एवरेज कैसे निकालूंगा,
it is average if, then it will ask you to give a range. I'm going to give the range. Then it will ask me to give the criteria. So my criteria is 2012, criteria closed, bracket start, then average range, from where you want this average to come, this particular cell, then close the bracket, enter. Now see the result. किसी को कोई डाउट? अब आप इसको चेक कैसे करोगे कि ये 2012 वाले का ही एवरेज है? सिस्टम ने तो 2012 के डेटा को एक जगह एवरेज करके बता दिया, बट हाउ यू आर गोइंग टू चेक इट? दूसरा चेक करने का तरीका है, दैट इज फंक्शन. मुझे क्या निकालना है? प्लीज टेल मी. मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है? Average if it has given me average if. I'm going to give the range. I have given it a range. Then I'm going to give the criteria. You can give this criteria 2012. Then you want to give a range for average. Click on this particular location, then go ahead with it. Click. Okay, मैंने गड़बड़ क्या कर दिया? मैंने उसके फिर वहां पे ब्रैकेट लगा दिया. इसको फिर से फंक्शन लगाओ. मैंने उस पे ब्रैकेट लगा दिया था सर. वहां पे ब्रैकेट नहीं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लेता है. देन एवरेज इफ इज ऑलरेडी देयर, वी आर गोइंग टू गिव अ रेंज फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा. उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव द क्राइटेरिया, दैट इज 2012. देन I'm going to give average range. Average range is there and okay. दोनों में difference? Average is? No sir. अब देखो, अब आपको means you must be thinking ये गलत भी हो सकता है. ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिना बाहर में एक जगह कोलेट किए हुए डेटा को 2012 का एवरेज निकाल के दे रहा है, जस्ट डेटा से ही दे रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? So I'm going to select this data for you. I'm going to paste it here. You must be able to see this data. Go to data, filter it, implicate filter, go to 2012. It will give the data and नीचे टास्क बार पे जाओ. नीचे टास्क बार पे यहाँ पे दिख रहा है? Let me annotate it. मेरे टास्क बार पे क्या आ रहा है? सॉरी, स्टेटस बार पे क्या आ रहा है? सर एवरेज आ रहा है 285 ही आ रहा है या अलग है? 285 ही आ रहा है. तो अब आप जस्टिफाई कर दिया ना कि एवरेज इफ कितना शानदार फॉर्मूला है कि वो पूरे लिस्ट में जितने भी कोई डेजिग्नेटेड वैल्यू के जितने भी नंबर्स होंगे उनका सबका एवरेज निकाल के आपके पास रख देगा. पहुंचने के 3 तरीके. पहला, एवरेज इफ डायरेक्ट फंक्शन लगा के. दूसरा, आप फंक्शन इंसर्ट फंक्शन लिंक के थ्रू. तीसरा, आप फिल्टरिंग के थ्रू कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes, sir. Live transcription closed, captioning has been enabled. I think some changes is being made by the participant. Don't do this. Just a minute. I have to disable annotation. Okay. Because यहाँ पे मतलब अलाउ करने के बाद लोग पार्टिसिपेशन वहां पे चेंज करने लग जा रहे हैं. चलो, मैं बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कभी कभी कि कमांड कंट्रोल होना चाहिए. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि बड़े से डेटा में अगर मुझे उस डेटा का एवरेज निकालना है और एवरेज का मैं कंडीशन देना चाहता हूं, तो मैं एवरेज ही फॉर्मूला लगा के उस चीज को
यही बोल रहा हूँ ना नीचे, जस्ट सर आपने रेंज में क्या वैल्यू पुट की थी? रेंज में ईयर, एवरेज रेंज में, एवरेज रेंज में, एवरेज रेंज में जो वैल्यू, let me one minute, just a minute. I think somebody has changed this control option. Transcript. Now it will be disabled because somebody has opened that transcript mode. Okay. So is it clear to everyone? अब हम लोग ने चेक कर लिया एवरेज इफ पे, एवरेज इफ तक क्लियर किया, तो अब एवरेज इफ से इसको डिफरेंस समझना आप। मींस अगर मैं एक साथ 2-3 वैल्यू इंप्लीकेट करना चाहता हूं, 2-3 वैल्यू इंप्लीकेट करना चाहता हूं, मतलब मैं 2 क्राइटेरिया लगाना चाहता हूं। 2 क्राइटेरिया, जैसे मैंने टेलीफोन एक्सपेंस लिया और टेलीफोन एक्सपेंस के साथ मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लिया, और एक तो टेलीफोन एक्सपेंस ये सेलेक्ट कर लेगा, और दूसरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से किसी एक को पिक कर लेगा। अब इसका खूबसूरती देखिए, पहले एक तो आपके पास अगर आपके पास सॉर्टिंग फिल्टरिंग तरीका है, आपके पास अवेलेबल है, देन क्लिक ऑन दिस। आपको ये सिंपली सॉर्टिंग फिल्टरिंग के थ्रू भी यू कैन डू दिस। क्लिक ऑन फिल्टर एंड इट हैज टेकन फिल्टर। अब यहां से जाके आप सेलेक्ट ऑल करते हो। अभी सब टोटल का भी बताऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसमें एक डेटा वेरिएशन आता है, बताऊंगा थोड़े अगले स्टेप्स में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर लूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करने के बाद उसी डेटा में मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के सम, एवरेज, सब कुछ मैं निकाल सकता हूं। वो डेटा वैल्यू में सॉर्टिंग फिल्टरिंग के द्वारा। लेकिन मैं इतना मेहनत नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसा कमांड चाहता हूं जिसके थ्रू मुझे एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करके दे दे। अब वो कैसे देगा? यहां पे कमांड है आपके पास, इसको लिखते हो एवरेज इफ्स, और ये पहले वाला था इफ, ये है इफ्स। अब यहां पे कमांड लगाते हैं, इक्वल्स टू, प्लीज क्लोज योर वीडियो नाउ। Now I am going to implicate average if, ठीक है। एवरेज रेंज, कहां से एवरेज रेंज उठाना चाहते हो? मींस this is the data value through which I am going to select the average range, then comma, then criteria range. This is the first criteria range, please switch off your mic, please, it's a request. Then it is going to ask you first criteria, then double and type tele, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इट विल नॉट रीड, इट इज केस सेंसिटिव, ENC and double not, then it will ask you to close. Samsung. Okay. हाँ, टेलीफोन एक्सपेंस के बाद इट विल आस्क यू क्राइटेरिया 2. वेयर इज माई क्राइटेरिया 2? दिस वन इज माई क्राइटेरिया 2. Criteria 2 I have given, then criteria 2, then criteria 2 means in that criteria range which particular thing I want to search, north. अब इसके साथ एक लिमिटेशन याद रखिएगा, मैं फॉर्मूला क्लोज करने जा रहा हूं। अब ऐसे कई कमांड्स हम एक साथ लगा सकते हैं अगर एक साथ कई क्राइटेरियाज लगे, जैसे आइटम है, रीजन है,
रीजन के बाद अगर कोई लोकेलिटी आ जाता, लोकेलिटी के बाद सब लोकेलिटी आ जाता, और सब पे इंडिविजुअली हम ये फॉर्मूला इम्प्लीकेट करके, फंक्शन इम्प्लीकेट करके वैल्यू निकालना चाहते थे तो भी पॉसिबल था। ये सिर्फ 2 कमांड देके नहीं रुकता, यू कैन इम्प्लीकेट n नंबर ऑफ कमांड्स इन दिस एवरेज इफ। और ये एवरेज इफ से एवरेज इफ्स है, मतलब आपको सिर्फ एक कमांड नहीं देना, इट विल अलाउ यू टू गिव n नंबर ऑफ कमांड्स, और आपके जितने फंक्शंस के सब फंक्शंस क्रिएट होते चले जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू काउंट एवरेज इफ्स। अब मैं एवरेज इफ्स के बाद एंटर करने जा रहा हूं। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। कैसे निकला फिर से दोबारा देखो। पहले इसने क्या बोला कि मुझे उस रेंज को बताओ जिस रेंज में मुझे एवरेज निकालना है, तो ये दिस इज द रेंज। उसने फिर बोला कि आप दूसरा क्राइटेरिया बताओ, तो ये आइटम वाला एक क्राइटेरिया हुआ। आइटम वाले क्राइटेरिया में आप क्या सर्च करना चाहते हो, तो टेलीफोन एक्सपेंस सर्च करना चाहते हैं। फिर वो बोला कि क्राइटेरिया 2 बताओ, क्राइटेरिया 2 रीजन है, क्राइटेरिया 2 बता दिया। क्राइटेरिया 2 के बाद उसने पूछा कि क्राइटेरिया 2 में आप क्या सर्च करना चाहते हो, मैंने बता दिया नॉर्थ सर्च करके बताओ। तो 2 तरीके से फिल्टर करके उसने एक साथ आपको वैल्यू दे दिया। अब तो ये एक तरीका हुआ, यहां तक में किसी को डाउट? मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान No, से, sir. प्लीज प्लीज कीप ऑन वॉचिंग बिट सीरियसली। So first type I have already discussed. Second average if निकालो आप। सेकंड को मैं आपके इंसर्ट फंक्शन वाले टैब से करता हूं। इंसर्ट फंक्शन एवरेज इफ्स टाइप करो, एंटर। इसने दे दिया एवरेज इफ्स। अब आप एवरेज रेंज कौन सा देना चाहते हो, जहां से आपको एवरेज रेंज मिलने वाला है, दिस वन इज द एवरेज रेंज। क्लियर? एवरेज रेंज के बाद इट इज आस्क मी फॉर फर्स्ट क्राइटेरिया, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया के बाद इट इज आस्किंग मी क्राइटेरिया नंबर 1, that is telephone expense. Then it is asking for second criteria, this is the second criteria, or in that it is asking for criteria, second criteria range दिया और criteria second criteria को भी दे दिया, it is okay। कोई dissimilarity है? Any dissimilarity which you are finding? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये मैंने, अब देखो, मैं इस चीज को करने के लिए मुझे हो सकता था फिल्टर लगाना पड़ता 275, रिमेंबर इट, 275 इज द फिगर। अब इसको मैं इस वाले सीट पे, आपको विजिबल नहीं होगा, दूसरे सीट पे ले जाके आपको फ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो, सॉर्टिंग फिल्टरिंग से इतना सॉर्टिंग फिल्टरिंग करने के बाद यू मस्ट बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। लेकिन एवरेज इफ से ये चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, यू कैन सी दिस नाउ। दिस इज द डेटा and increase its size. After increasing its size, implicate, go to data, बार बार जा रहा हूं इसलिए आपको याद भी हो जाएगा steps। go to data and have already implicated this। मेरा पहला क्राइटेरिया क्या था? just select telephone exchange, first criteria। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? out of south, north, and is it the correct value? Average, are you able to see this? Yes, sir. नीचे स्टेटस Yes, बार sir. 275 दिख रहा है? 270. पिछला फिगर कितना Yes, था sir. हमारा? पिछला फिगर जो हम यहाँ पे कर रहे थे कितना था? 275। और मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग फिल्टरिंग करके जो फिगर लाया आपके पास, वो फिगर कितना आया? इज इट विजिबल टू एवरीवन? मींस नीचे देखो, जहां पे मैं वैल्यू दिखा रहा हूं, वॉच एट दिस लोकेशन, इज इट विजिबल टू एवरीवन? 275 है? Yes, sir. तो 275 आपके Yes, sir. सीट पे जब आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी एवरेज इफ से 275 ही निकला था।
और दूसरे वाले सीट पे जब मैं सॉर्टिंग फिल्टरिंग से गया तो मुझे 2 बार फिल्टर लगाना पड़ा, तब जाके 275 तक पहुंचा। तो एवरेज इफ्स का इंपॉर्टेंस समझ पे आप आ रहा होगा? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? 2 तरीका जी, देखो, sir. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा मत। व्हाई आई एम आस्किंग यू सीरियसली, ये आपका काम इतना आसान बना देगा। और इससे प्रैक्टिस सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ्स, ये सब आपस में रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे कमांड लगा रहे हो, आगे जितने कमांड्स आने वाले हैं, मोस्ट ऑफ दोस कमांड्स आर सिमिलर। तो एक बार इसको समझे तो अगले जितने कमांड्स आएंगे you'll be comfortable with all those commands। तो यहाँ पे एवरेज इफ मैंने कैसे लगाया, फर्स्ट क्राइटेरिया दिया। फर्स्ट क्राइटेरिया अगर मैं फंक्शन के थ्रू जाता हूं तो आप ऊपर में देखो, देखने का तरीका, ये फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल ड्राइव, देन यू कैन इम्प्लीकेट ऑल दीज थिंग्स, यू कैन यूज दिस सीट्स एज वेल। अब एवरेज इफ्स मैंने लगाया। एवरेज इफ्स के बाद इसने पूछा, आप पहला क्या इसने पूछा, यहाँ पे देखो फिर से बता ही दे रहा हूं। जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। इफ्स, ठीक है, डबल क्लिक, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज कहां से मिल रहा है, आप खुद से बताओ मुझे, एवरेज कहां से मिलेगा, Value, किस डेटा का? value, sir. वेरी गुड, वैल्यू से मिलेगा। आप बता रहे हो, मैं कुछ नहीं बता रहा। उसके बाद That's आप item. देखो, इसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। मुझे फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज कहां से मिलेगा? दिस इज द Item. आइटम। वेरी गुड, सब आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हो, ये ब्यूटी है। वेरी नाइस। मैंने क्राइटेरिया भी दे दिया, फिर मैंने कॉमा दिया। अब वो क्या पूछ रहा है मेरे से? इट इज Range, sir. आस्किंग, इट इज आस्किंग क्राइटेरिया 1, कि अब इस वाले क्राइटेरिया में से आप सेलेक्ट ही क्या करना चाहते हो। तो जब आप किसी क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको डबल कोट देना पड़ता है। डबल कोट के अंदर में यू आर गोइंग टू आस्क TELE। और एक चीज कॉशन रखना कि इफ विल मिस द स्पेलिंग, इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, रिजल्ट नहीं दे रहा है, आप फंक्शन वाले के थ्रू जाके इम्प्लीकेट दो, वहां पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक का डर नहीं रहता, एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब मैंने कॉमा लगा दिया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया 2। वेयर इज द क्राइटेरिया 2? Sir, range. रीजन। रीजन इज माय क्राइटेरिया 2। criteria range is my this one, and after that place comma, it will ask me criteria 2. What is my criteria 2? Double quotes, north, then close bracket and close the final thing. Is it visible to everyone? Yes, sir. अब इस चीज को याद रखो। अब इस चीज को दोबारा फंक्शन वाले से भी कर लो तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। दिस वन, average ifs is already there. Okay, give average range. This is the average range. Then give criteria range. Criteria 1 is items. Select items. Then give criteria 1. Criteria 1 is your, I think, telephone expenses. Then it is asking for range for criteria 2. और ये जान तो टाइप करने से ज्यादा सिंपल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स बच जाते हैं। मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ। यहाँ पे ये डायरेक्ट कमांड से पता चलता है, ये फॉर्मूला खुद ही लिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट साइड पे इसने ऑलरेडी वो फंक्शंस में जो जो चीजें यूज होंगी, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन, और वो बैकग्राउंड में काम चल रहा है। जो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये खुद से टाइप कर रहा है। दिख रहा है यहाँ पे नॉर्थ साउथ Yes, sir. टेलीफोन Yes, sir. एक्सपेंस। तो ये एक्चुअली Yes, आपके बैकग्राउंड में ये काम कर रहा है सिस्टम। और ये ज्यादा सस्ता तरीका है बनिस्पत इसके कि आप टाइप करें। तो आप फंक्शन इंसर्ट फंक्शन की के थ्रू करेंगे तो मिस्टेक होने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि सिस्टम गिव्स यू दिस रिजल्ट। बट इफ यू वांट टू टाइप इट वेरी कॉशियसली। और क्या होता है कि जब आप टाइप करते हो, एट द एंड ऑफ इट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, तो आप फेड अप हो जाते हो। अरे मैंने इतना दूर तक उसके फंक्शंस को पूरा टाइप करके लेके गया, लास्ट में रिजल्ट आया नहीं, तो आप फेड अप हो जाओगे, छोड़ो यार, जाने दो। but if you are going to use this insert function option, your voice is not clear. I think somebody was talking. Let me give this criteria 2
first, criteria 2 is north, and then okay. Now यहाँ पे 275 आ गया आपके पास. Is it clear to everyone? मैंने 2 बार रिपीट किया, but it is very much necessary to understand this step, क्योंकि ये आपका काम. अब सोचो यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर दो. यहाँ पे नहीं करूं, नहीं तो डेटा सेट खराब हो जाएगा. मैंने कहाँ पे काम किया है? यहाँ पे किया था ना. ये सारे फिल्टर्स हटा दो पहले. इसका खूबसूरती बताता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है. अब रीजन के बाद इंसर्ट वन मोर थिंग. रीजन के बाद आप क्या, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन. अब नॉर्थ रीजन के इसमें आप चले जाओ स्टेट. स्टेट में आप चले जाओ, नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में तमिलनाडु है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में अगेन दिल्ली है, साउथ में तमिलनाडु है, नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में तमिलनाडु है, साउथ में तमिलनाडु है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में दिल्ली है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, देन नॉर्थ में दिल्ली TN तमिलनाडु, ईस्ट वेस्ट बंगाल, नॉर्थ दिल्ली, साउथ तमिलनाडु, नॉर्थ दिल्ली, साउथ तमिलनाडु, ईस्ट वेस्ट बंगाल, नॉर्थ दिल्ली एंड साउथ तमिलनाडु. मैंने एक एक स्टेट को जोड़ दिया रीजन से. अब ये मेरे पास कितने क्राइटेरियाज आ गए? 4. 3. पहला आइटम क्राइटेरिया, रीजन क्राइटेरिया, स्टेट क्राइटेरिया. ये तो मुझे एवरेज वैल्यू देगा ना. ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ, यहीं से तो वैल्यू निकलना है. अब मैं इसको फंक्शन वाले के थ्रू, बिकॉज टाइप करूंगा तो पक्का गलती होगा. एवरेज इफ्स गया, एवरेज इफ्स के बाद एवरेज रेंज इसने पूछा, मैंने एवरेज रेंज बता दिया. एवरेज रेंज के बाद मैंने क्राइटेरिया 1 किया, क्राइटेरिया 1 दे दिया रेंज. क्राइटेरिया 1 में टाइप किया, क्राइटेरिया 1 में मैं इस बार सैलरी एक्सपेंस दे रहा हूँ. सैलरी एक्सपेंस के बाद इसने मुझे क्राइटेरिया 2 मांगा, मैंने क्राइटेरिया 2 दे दिया. क्राइटेरिया 2 देने के बाद इसने मुझसे क्राइटेरिया 2 रेंज दे दिया. क्राइटेरिया 2 रेंज देने के बाद इसने मुझसे क्राइटेरिया में नॉर्थ मांग लिया. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीट पे चूंकि मैंने इंसर्ट किया, ये मुझे मौका नहीं दे रहा, लेकिन इस क्राइटेरिया के बाद जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे इट विल ऐड क्राइटेरियाज, और वो क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ऐड करते चले जाओगे, और उसके बेसिस पे अब अगला जो क्राइटेरिया ऐड करोगे, क्राइटेरिया 3 वुड बी ऑफ स्टेट, और स्टेट में जब जाओगे तब जाके आप वैल्यू इंप्लीकेट करोगे. अब इसका दूसरा तरीका क्या हुआ, आप फिल्टर करो. मुझे इस बार टेलीफोन एक्सपेंस नहीं, सैलरी एक्सपेंस चाहिए था. ओके, मुझे वेस्ट बंगाल का मतलब ईस्ट का चाहिए था, और वेस्ट बंगाल का ईस्ट में मेरे को डाटा मिल गया. ऐसे करके क्राइटेरिया का सब क्राइटेरिया यू कैन क्रिएट, एंड आफ्टर दैट यू कैन कीप ऑन एडिंग फंक्शंस, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा. इफ लॉट्स ऑफ डेटा इज देयर, एक साथ आप सबको मर्ज करके एक डेटा निकालना चाहते हो, देन average ifs IFS is, because I will try it from formula for 5 times and each time sometimes get wrong in writing formula, unable to get results. Sir, insert function से ज्यादा बेटर हो रहा है. हाँ, वेरी गुड. तो ये ज्यादा खूबसूरत है, जानते, उससे एरर होने के कम चांस रहते हैं. और मैं भी प्रिफर करता हूं, चूंकि अब काम को कराना है, दिखाना है, इस वजह से आई एम यूजिंग इट. but then also I also usually prefer to use insert function. और इसमें जितने एक्सेल में फंक्शंस हैं ये सब इंसर्ट फंक्शन में अवेलेबल है. जितने भी अभी तक मैं जितना बताऊंगा सबको यहाँ से भी बताऊंगा, और ऐसे मतलब उसके सेंटेक्स को भी लिख के बताऊंगा. सेंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक कॉमा और एक डबल डॉट्स में जो क्राइटेरिया फिक्स करते हो उसमें एक भी एरर रहा तो बस समझिए आप इतने लंबे सेंटेक्स को लिखने के बाद you are not going to get any result. So that is the beauty of insert function. So keep on using that particular.
हाँ मेरे साथ साथ बहुत बार हो चुका है। हाँ, ये इसीलिए जानते हो पीपल यूजुअली एब्सटेन टू डू ऑल दिस थिंग्स। बोलते इतना क्राइटेरिया लिखा, इतने फंक्शंस लिखे, लास्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, just leave it, it is of no use. But if you are patiently using this particular platform, try to use insert function. Insert function में टाइपिंग का प्रॉब्लम खत्म होता है, बैकग्राउंड में वो खुद ही सिस्टम काम करता है, तो चीजें आसानी से निकल जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन विल मूव अहेड। यस अभी सर, थोड़ा यस सर। थोड़ा थोड़ा अपना एक्सेल वाला फील लेके आ रहा हूँ। अब इंटरमीडिएट लेवल पे अपन बात कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरमीडिएट थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ना? इज इट क्लियर? यस नो? नाउ कम्स सम इफ। सम इफ में क्या होता है कि आप इसमें एक क्राइटेरिया करते हो और सम इफ्स हो जाएगा। समझो यहां पे मैंने जो बताया सेम सेम चीज को, सम एवरेज इफ है, मैंने एक क्राइटेरिया का उसका निकाला, एवरेज इफ्स है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना? यू मस्ट हैव नोटिस, ये सिर्फ इफ है, यहां पे इफ्स है। इफ्स में you can add n number of criteria, but if it is only if, you are going to add only one criteria. Is it the case? Yes, no, not at all. Yes, sir. It is the जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है उधर से जो आ जाता है ना, तो हैंग करके आता है, यस तो वो सुनोगे तो लग जाएगा कि देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम इन योर फ्रॉम योर साइड। नाउ कम, सम इफ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिक सम इफ, ओनली इफ, इफ्स नहीं, सम इफ्स। इट विल आस्क यू टू गिव रेंज, रेंज this is the range, ठीक है? then click comma, what is the criteria? double 2012। अब देखो इसमें कितना डर है, 2012 में एक भी 12 13 14 कुछ भी हुआ, बस it is not going to accept it. Now it will ask you from where this system is going to get its sum. Now I have given the range for sum, give enter। अब दूसरा वाला फंक्शन के थ्रू इसी चीज को देख लो। मुझे 2012 वाले को एक जगह मुझे चाहिए, सम इफ एंटर, सम इफ एंटर, ओके। what this particular thing is going to do, give first range, I have given this range, then I have given 2012। यहाँ पे कोई एरर का प्रॉब्लम है, then I have to give this सम रेंज, जहां से उसको सम पिक करना है, एंड दिस। कोई वेरिएशन है? अब देखो इसको, इसी चीज को करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, द काइंड ऑफ एफर्ट यू मस्ट हैव डन टू जस्ट इम्प्लीकेट दिस थिंग। छोटा सा ये क्लियर किया, इस पे मैंने फिल्टर लगाया, एंड आई हैव वर्कड फॉर 2012, सो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ओनली 2012, दिस वन, एंड go to home, use auto sum, and it will give you the result। दोनों तीनों प्रोसेस से आपको चीजें दिख रही हैं? Is it clear to everyone? Yes, sir. So this is the beauty of if function। ये if function आपको इतना, आपको sorting filtering लगाने की कोई जरूरत नहीं। You can easily go to sum if, and sum if is going to give you the result। अब sum if के बाद sum ifs, I'm not going to say anything, you people are only going to guide me, okay? दो सेल बना दे रहा हूं, उसमें आप जैसा बोलोगे आई एम गोइंग टू डू दिस। सम इफ्स के दो तरीके से इसको पहुंचा जाएगा, और इट विल टेल यू हाउ मच यू हैव गॉट। सम इफ या सम इफ्स? एम आई देयर? Some if. वेरी गुड, यहीं पे रहना। सम रेंज, वेयर इज द सम रेंज? दिस इज द सम रेंज, जहां से आपको सम पिक करना है। देन व्हाट इज इट इज आस्किंग? कॉमा, क्राइटेरिया रेंज, फर्स्ट क्राइटेरिया, this one, criteria range। after criteria it is going to ask you the first criteria, double dots, first criteria, be cautious about। अगर आपको दिख रहा है कि सर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, प्लीज टेल मी।
otherwise entire effort will be lost. Expense, is it okay? Then double dots closed, then comma, then criteria 2. Where is the criteria 2? Region is the criteria 2. Region is the criteria 2. Now I have selected this criteria 2. Now again comma, then it is going to ask me criteria 2. Where is the criteria 2? I'm going to select under double dot north, then close, and then close the bracket. 550. Is it clear to everyone? इसने Yes. एक साथ दो क्राइटेरिया को इंप्लीकेट करके इसने निकाल दिया सम इफ्स फंक्शन। आप चाहते हो तो रीजन के अगले वाले क्राइटेरिया, अगले से अगले के वाले क्राइटेरिया, एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया लगा के यू कैन रीच। अभी मैं सबसे आसान से फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूं। अब इसको इंसर्ट फंक्शन से जाके करते हैं। सेम बार बार इसलिए बता रहा हूं सो दैट इट कैन गिव यू सम इफ्स इसमें दिख रहा है, सम इफ तो दिख रहा है, इफ्स नहीं दिख रहा, तो सम इफ्स ऊपर में टाइप करेंगे, ओके करेंगे। नाउ इट इज विजिबल, it will give me the dialog box. Sum range, where is the sum range? This one is the sum range. Now which particular platform is more easier? हाथ से टाइप करना या this one? ये ज्यादा इजी है। हाँ, very good, इसी को यूज करना। Criteria 1, in criteria 1 I'm going to give telephone expenses, then it is going to ask me criteria 2 range, this is criteria 2। और एक्सेल ने आसान चीजों को बनाने के लिए ही बनाया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है दैट इज डिफिकल्ट, और कहीं ना कहीं उसने अच्छे से तरीके को समझाया किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। नाउ आर यू गेटिंग एनी डिफरेंट वैल्यू थ्रू दिस? सो दीज आर द टू वेज थ्रू विच यू कैन इम्प्लीकेट सम इफ्स। किसी को दिक्कत हो कहीं पे भी, और अगर माय सजेशन वुड बी टू यूज योर लैपटॉप एज वेल, मोबाइल पे you can keep running these presentations and on the laptop you can start working as I am doing। साथ साथ में करोगे मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में शायद टाइम ना मिले, means you must be engaged in some different kind of tasks and works, so chances are there you may not get time to implicate all these things। I'm giving more time because this is the basic function of, this is the basic utility of Excel। डिफिकल्ट काम को छोटे छोटे फंक्शंस के थ्रू आसान बनाना, यही ब्यूटी है एक्सेल का। इफ यू हैव कमांड ओवर ऑल दीज थिंग्स, ultimately your task would be much easier and you can implicate all these things very easily and learn things quite well। So am I there with you all? So can I move ahead or do I have to repeat it once again? चीजें रिपीट हो रही है तो अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा, मैंने एवरेज इफ में 2-3 बार बता दिया, तो अब सम इफ्स है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ काउंट इफ क्या करता है? अब आप बताओ, मैं सब बंद करने, धीरे धीरे आपको अब प्रैक्टिस हो रहा है। नाउ यू पीपल आर द गार्जियंस, नाउ यू पीपल आर द एक्सपर्ट्स। अब आप इंटरमीडिएट लेवल को कंप्लीट करने वाले हो, मतलब कल तक आपका इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाएगा एंड बाय सैटरडे यू विल फिनिश योर एडवांस लेवल एज वेल। तो अब आप बताओ, मीन्स इसका फायदा आप उठाओ, मुझे बताओ। काउंट इफ दिस इज द फंक्शन, डबल क्लिक इट, क्या पूछेगा? दिस इज आस्किंग फॉर रेंज, रेंज। इस पे एक डिफरेंस है, इस पे सिर्फ रेंज दे दोगे और सामने वाले अमाउंट का नहीं दोगे तभी ये सम करके दे देगा। देखो खूबसूरती। देन कॉमा, गिव द क्राइटेरिया, दिस इज 2012, डबल डॉट्स क्लोज्ड, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। आ गया? ये क्या कर रहा है? 2012 में कितने फिगर्स हैं 2012 वाले, उसको काउंट करके बता दे रहा है बस। और इसको अगर प्रैक्टिकली देखना है, देन देखो, गो टू डेटा, इम्प्लीकेट फिल्टर, रिमूव एवरीथिंग, सेलेक्ट ऑल से चेक बॉक्स को हटाओ, यूज 2012 एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4। और अभी यहाँ पे रिजल्ट में क्या है हमारे पास? काउंट कर रहा है ना, सो इट इज काउंटिंग 4। तो इसने बता दिया। अब इसको यूज कहाँ करना है? आप बहुत बड़े डेटा सेट पे हो, और बहुत बड़े डेटा सेट पे यहाँ पे कार्तिकेय आ जाता, सिंपली कार्तिकेय। क्राइटेरिया क्या हो जाता? कार्तिकेय। इस पूरे लिस्ट में कितनी बार कार्तिकेय आए हैं? विल यू नॉट बी एबल टू काउंट इट?
Getting me? No, sir. They will be able to. That is the beauty. Means whichever data is coming, COUNTIF is going to give you the count figure. ये तो सामने में मेरे को, मैं तो माउस से भी काउंट कर सकता था, छोटा सा डेटा था. लेकिन सपोज 1000, 2000, 3000 datas are there, so will you be able to count manually? So you are going to implicate this particular function, and this function is going to count you on your behalf. COUNTIF function. Is it okay with everyone? Yes, sir. चलो, Yes, sir. as a ritual, I'm also going to show it through. कौन सा, क्या नाम है इस पर्टिकुलर कमांड का? Insert. Insert COUNTIF. function. Insert function, Control A. Then here we are going to count if. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now give me the range. Where is the range? This is the range. ये sum वाला criteria नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है range. So we have given this range. Now it is asking for criteria. I'm going to give 2012 and I'll just press OK. Are these two values are not the same? So COUNTIF का क्या दो बार समझा दिया. COUNTIF of you are going to sort it through year, in year, particular year, how many numbers are there, you are going to get it through COUNTIF function. Up just imagine a situation where a student name is there, or company name is there, or salesperson name is there, but how many times that salesperson name has been repeated in this, ultimately COUNTIF is going to give you that result. Getting me? इससे डुप्लीकेसी पता चल जाएगी उसके और जब आपको एक एम्प्लॉय का नाम कितनी बार आया पता चल गया, तो उसका सम और एवरेज आप नहीं निकाल लोगे. प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो कि नहीं? एक पूरी लिस्ट है, वन लिस्ट इज देयर, लाइक सेल्स पर्सन. अब डेली बेसिस पे सेल्स कर रहा है, पूरे साल में सेल्स किया इसने. दूसरी तरफ से सेल्स फिगर पूरे साल में लाइक 365 डेज. तो फॉर एग्जांपल मोहन, सोहन, हरि, सीमा, गीता, देन अनूप, देन साहिल, ये एम्प्लॉइज आ गए. अब इन एम्प्लॉइज में अगर इफ विल ड्रैग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी. ये तो साल में कई बार सेल करेंगे ना. इज इट द केस? मीन समझ रहे हो केस को? Yes, sir. अब ये कई बार Yes, सेल sir. करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स फिगर Yes, होगा sir. मान लो Yes, sir. Yes, sir. लेकिन 20. जस्ट एग्जाम्पल मीन्स आई एम जस्ट, और इसको चाहो तो आप यहां से को ड्रैग करके और बाकी को फिल कर दो इसी से. बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. ठीक है इसने. और इसका अगर आपको डेसिमल पसंद नहीं आ रहा तो यू कैन रिड्यूस दिस डेसिमल. अब देखो मेरे पास फिगर हो गए. मोहन ने कितनी बार सेल किया? इज इट नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट? मोहन कई बार आया, कितनी बार मोहन आया और मोहन ने कितना सेल्स किया, वो इस पूरे लिस्ट से पता नहीं चल जाए. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस काउंटिफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, एवरेज इफ फंक्शन. तभी मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज गो थ्रू दीज लिंक्स एंड कीप ऑन यूजिंग. दिस विल ईज आउट योर टास्क. नाउ कम्स काउंट इफ. मैंने पहले क्या किया? काउंट इफ, और अब काउंट इफ्स जा रहा हूं. काउंट इफ्स क्या करेगा? क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया, इट विल कीप ऑन एडिंग. तो आप एक काउंट इफ में सिर्फ एक फंक्शन को कर रहे हो. काउंट इफ्स में यू आर गोइंग टू काउंट इफ्स में यू आर गोइंग टू ऐड डिफरेंट क्राइटेरिया, n number of criteria. So let's implicate it. Count ifs, double click on it. It is going to ask me criteria range 1, criteria range 1,
criteria range 1, it is going to ask me criteria 1. क्या criteria 1 है आपके पास? अगेन ये आप देखो इस पे एरर क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है. अगर ये अलाउ करता कि आई कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज लिंक्स, तब तो मेरा बिल्कुल आसान काम हो जाता. वो जस्ट मैं उस पर क्लिक करता और वो डेटा वहां पे ले लेता, तो मीन्स माई टास्क वुड हैव मच इजियर. बट द प्रॉब्लम इज एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस, ये एरर दे देगा. देख रहे हो, इसको क्राइटेरिया के रूप में नहीं कंसिडर करेगा. यहाँ पे अभी मैं एंटर कर दूं, फट से एरर आ जाए. प्रॉब्लम इसके साथ है, जब टाइप करते हो इट विल आस्क थिंग्स इन डबल कोट्स. सो इन दैट केस यू हैव टू TLPHONE, very cautious in typing and checking the spellings. If I'm wrong, please inform me. Then it will ask you to give criteria range 2. This is the criteria range 2. I have given this criteria range 2, then comma, and it is asking me criteria 2. Criteria 2 is NORTH, criteria 2. Then I have already written it, enter. कैसे चेक होगा ये? कि अगर मैं टेलीफोन एक्सपेंस करता हूं तो टेलीफोन एक्सपेंस में कितने नॉर्थ रीजन वाले हैं और उसका वैल्यू क्या है, उसके कितने काउंट है. ये मैं, आप चाहो तो फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हो. और दूसरा चेक करने का तरीका, इंसर्ट फंक्शन. मुझे क्या करना है यहाँ पे? काउंट इफ्स, एंटर. नाउ इट विल गिव मी द फैसिलिटी criteria range 1. Now you people will be used to using all these things. अब आपको ये telephone expense, then criteria range 2, this one is the criteria range 2, then it is asking me for criteria 2 and range criteria range 3 I'm not using. Okay. Has it given the same value? Is it visible to everyone? Am I audible to you all? Yes, sir. तो ये काउंट इफ्स का, अब इसको चेक कर दो. आपके लिए मैं चेक भी कर देता हूं. चेक ऐसे कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट करते हैं, इसको छोटा बना देंगे. अब मैंने पेस्ट कर लिया फिगर को. अब मैं इस पे डेटा पे जाता हूं. आई एम इम्प्लीकेटिंग फिल्टर. मुझे कौन सा चीज सेलेक्ट करना है? टेलीफोन एक्सपेंसेस. टेलीफोन एक्सपेंस आई हैव डन, एंड नाउ आफ्टर टेलीफोन एक्सचेंज सेकंड क्राइटेरिया इज 2. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? कितने नंबर आए? काउंट कर रहे ना, 2. तो 2 ही तो रिजल्ट आ रहा था हम लोग के पास. काउंट करने के बाद यहाँ पे कितने रिजल्ट्स आए थे? 2 को हमने 3 तरीके से देख लिया कि हाँ, काउंट इफ्स के थ्रू हम कितने, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने नंबर्स हैं और उस कैटेगरी के सब कैटेगरी में कितने नंबर्स हैं, दैट वी कैन काउंट इट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो, we have completed 11 things and I'm yes please tell me. सर क्या जब ये फिल्टर्स हो जाए तो फॉर्मूला क्यों लगाया सर? फॉर्मूला फिल्टर लगाने के लिए आपको देखो, मतलब आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ आप फंक्शन इस तरफ लगा रहे हो तो आपको 2 फंक्शन एक ही बार में टाइप करने के बाद वो डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है. ये तो मैंने सिंपल सिर्फ 2 क्राइटेरिया लगाया है. आप चाहते तो रीजन के बाद सब रीजन के बाद पर्टिकुलर लोकेलिटी के बाद पिन कोड, और उस पिन कोड में कितना सेल्स और कितना वैल्यू वो भी निकाल सकते थे. ये सिर्फ सीट में 2 क्राइटेरिया है इन दिस पर्टिकुलर सीट, बट n नंबर ऑफ क्राइटेरिया कैन बी देयर. और आप हर में जाते, सॉर्ट करते, फिल्टर लगाते, फिल्टर लगाने के बाद बार बार फिल्टर लगाते और वहां पे पहुंचते. इससे बढ़िया है जस्ट टाइप दिस फंक्शंस एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. और व्हाई आई एम आस्किंग यू, बड़े डेटा पे कितना फिल्टर, कितना सॉर्टिंग फैसिलिटी, वहां पे कैसे इंप्लीकेट करोगे और अल्टीमेटली कितना काउंट करके लेके आओगे? आई डोंट थिंक इट वुड बी अ पॉसिबल टास्क. आसानी से आप कर सकते हो सॉर्टिंग फिल्टरिंग बार बार करके, मैं दिखा भी दे रहा हूं, लेकिन जब बड़ा डेटा पे डील करते हो तो यू कैन डू इट थ्रू दिस लिंक्स एज वेल. तो सर ये काम वी लुकअप भी कर सकता है ना सर? बिल्कुल, अभी वहां पे भी पहुंचना है. अभी धैर्य धरिए भीम जी,
Yes, sir. Thank you. अभी वहां पहुंचेंगे सॉर्टिंग फिल्टरिंग अभी अभी इसके बाद जब मैं बेसिक फंक्शंस बताऊंगा देन माय नेक्स्ट टारगेट इज डेटा वैलिडेशन और वंस आई विल डू दैट डेटा वैलिडेशन देन आई एम गोइंग टू गो थ्रू सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग so this is the steps which I am following. Once I'll complete sorting and filtering then I'll move to pivot table and pivot table is master filter. It has everything. जैसे इतना जो आप फॉर्मूला लगा लगा के सर्च कर रहे हो इन pivot table you'll get with a click of button immediately you get the result. And once I'll complete the pivot table I'm going to make dashboard for you people. Dashboard is the talk of the town. Means many people are telling, lots of YouTube videos are also there in the market. Dashboard, financial dashboard, HR dashboard, marketing dashboard. So at least 2 to 3 dashboards I'm going to create it for you. So it would be an interesting session in future. आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा लास्ट में that will amaze you. डेटा एंट्री का एक छोटा सा टैब बताऊंगा if time will permit. ठीक है, मुझे रिमेंबर करा देना. कल जैसे मैंने डेटा एनालिसिस टूल पैक दिखाया था, बट हाउ दैट डेटा एनालिसिस टूल पैक कैन बी एडेड एंड इट इज गोइंग टू add everything or subtract everything or whatever you wish to do, it is possible through that link. So today also at the end of the session I'm going to take you to a very important link, but up to 11 count ifs we are done with it. I think many of you must have understood it. अगर ध्यान से सुन रहे हो पक्का तैयार हो गया हो. कई सेम सिमिलर चीजें एक जैसे एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ, ये कुछ चीजें हैं. इफ और इफ्स तीनों के कवर कर लिए तो प्रोसेस एक बार समझ लिए, यू विल स्टार्ट इम्प्लीकेटिंग इट. तो आपको ज्यादा चीजें आसान होंगी. बार बार आपके आंख के सामने से चीजें गुजरेंगी और एक दो बार खुद आप भी प्रैक्टिस कर लोगे घर पे, देन यू विल बिकम मास्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नाउ इफ लॉजिकल, वेरी इंटरेस्टिंग और you can play with it. ultimate result you are going to get. ये छोटा सा एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है, बट यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ एग्जांपल. इफ के इतने सारे एग्जांपल बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल if you have secured a marks and you want to like if you have secured certain marks which is greater than certain marks, you can quote it, I am highly delighted. If you have secured less marks, then you can quote, I'm highly disappointed. So all these things can be done through this if function. If function को समझो. If function दो क्राइटेरिया देता है. अगर आपने एक क्राइटेरिया फुलफिल किया, वो हुआ, तो एक अलग कोट आएगा, अलग स्टेटमेंट आएगा. अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो दूसरा क्राइटेरिया आएगा. तो यहाँ पे मैंने जो इम्प्लीकेट किया है, बजट किया है. आप एक्चुअल एक्सपेंस यहाँ पे देख पा रहे हो. इज इट विजिबल टू एवरीवन? Actual expense, predicted expense, or result? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है. So try to understand things. Why people have implicated it? मैं यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स कर रहा हूँ क्या कि अगर मेरा एक्चुअल एक्सपेंस बड़ा हो जाए प्रेडिक्टेड एक्सपेंस से, तो वो ओवर बजट तो होगा. मैंने जो प्रोडक्ट प्रेडिक्ट किया था उससे मैं ज्यादा खर्च कर दूं तो ये मेरा ओवर बजट हो जाएगा ना. Yes, sir. Are you understanding what I'm trying to say? Yes, समझ sir. रहे हो? मतलब मैंने पहले प्रेडिक्ट किया कि आई एम गोइंग टू स्पेंड 900 rupees, but actual expense was 15,000 rupees. Means much more than prediction. Means whatever I was predicting, I have exceeded that particular limit. तो उसमें मेरे पास क्या स्टेटमेंट आना चाहिए? ओवर बजट. तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, एक क्राइटेरिया फुलफिल किया तो एक स्टेटमेंट देगा, अगर वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया तो दूसरा स्टेटमेंट दे देगा उसकी जगह. तो इसको इंप्लीकेट करके देखते हैं. जस्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट क्लिक इफ और इफ डबल क्लिक. लॉजिकल टेस्ट क्या चाहते हो? दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन दिस वन, देन what if true? So some interesting statement I'm going to write. I am an expensive person. Close the quote, comma. If it is not true, quotes start. I
am a sensible person. Let's implicate it. Type वाइप में दिक्कत होगा तो नहीं चलेगा. क्या आया? है खूबसूरत चीज. Are you able to see the change? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? मीन्स अगर मैंने अपने प्रेडिक्टेड एक्सपेंस को एक्सीड कर दिया तो आई एम एन एक्सपेंसिव पर्सन. बट इफ आई हैवंट एक्सीडेड दैट, मैं सेंसिबल पर्सन हूं. यहां पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मैं 900 एक्सपेंडिचर होगा मेरा, मेरा एक्सपेंस 900 होगा, बट आई हैव यूज्ड ओनली 500 रुपीज. हियर my prediction was 925 rupees, but I have used only 525. Here my prediction was of 6,000 rupees, but I have spent more than that, so I am an expensive person. Here also I have exceeded the limit. I am an expensive person. Here I haven't exceeded my limit. I am a sensible person. दोनों का खूबसूरती देख रहे हैं. इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं. I will tell, I'll repeat it all as well. Yes, very much possible. Very much possible. For grades, like if you are between this and this number range, you have passed. If you have secured this and this particular marks, you are fail. So pass fail can also be judged through this if statement. It is very much possible. Dasna ji, can I repeat it once again, or you have got the basic crux of it? Sir, one time repeat. Yes, मैं फिर से कर रहा हूँ. This is if statement. Double click. Logical test means मैं कोई criteria लगाने जा रहा हूँ. This is my actual expense. If actual expense is greater than the predicted expense, this is the basic logical test. I'm going to give the comma. What I'm trying to write down means, अब मैं यहां पे लिख दूंगा खर्चीला. और अगर आपको इंग्लिश की जगह पे हिंदी, माइक्रोसॉफ्ट हिंदी इनपुट इफ यू आर एबल टू यूज, यू कैन यूज हिंदी एज वेल. यहाँ पे हिंदी भी आ जाता है आसानी से. और इफ इट इज नॉट मीटिंग, कम एक्सपेंसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई एम मित व्ययी. Don't ask me meaning of this. People who usually spend less, they are, means it is my understanding. I'm not sure whether it is right or wrong. कहाँ पे खर्चीला आएगा, कहाँ पे मित व्ययी आएगा, you can drag it and you'll come to know. यहाँ पे मित व्ययी मतलब कम खर्चीला, खर्चीला मित व्ययी. अब क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. So I think you people will be able to implicate it. Means if time will permit, I'll come up with so many if functions, utility of if functions. Every now and then you are going to, in mark sheet preparation, Sir, in sales report preparation. Yes, please tell me. सर अगर वैल्यू जो सेल में ना हो, जैसे कि मुझे वैल्यू कोई लेनी जी, 800 लेनी है, तो हाँ, उसके हाँ. लिए कहाँ पे 800 लेनी है? जैसे कि 900 के अबव जा रहा है तो एक्सपेंसिव हो रहा है. हाँ. अगर मेरी कोई रैंडम वैल्यू है तो उसके लिए कैसे करेंगे? रैंडम, आप जो भी रेंज में होगा वही तो लोगे, कि कोई रैंडम वैल्यू ऐड करोगे, या रैंड फंक्शन वाला बात कर रहे हो? जैसे कि अगर पास और फेल देखना है, तो अगर कोई बंदा 45 के एवर में तो पास है, पर यहाँ हाँ, पे हाँ. अगर एक्सपेंसिव से मुझे देखना है तो मुझे इस रेंज में से कोई चूज करना पड़ेगा. तो क्राइटेरिया लगा तो दिया. इफ इट इज ग्रेटर, देखो क्राइटेरिया क्या मैंने लगाया, सिंपल क्राइटेरिया लगाया कि इफ सेल 1 इज ग्रेटर देन सेल 2, जो आप जो प्रेडिक्ट करते हो उससे ज्यादा खर्च कर देते हो, तो आपके लिए एक अलग स्टेटमेंट आएगा. अब इसी के जगह पे मार्क्स रख दो. मार्क्स कैसे रख दोगे? अगर मान लो आप
400 नहीं, मतलब इसको तो हम लोग को क्या बनाना है, ये बनाना है कि ये बच्चा ज्यादा मार्क्स पा रहा है तो 500 मार्क्स रख दीजिए। और आपके पास नेक्स्ट आपका जो लिमिट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि ये तरीका नहीं ग्रेडिंग का, जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो बेसिक बेंचमार्क था एवरेज, और आप जानना चाह रहे हो कितने लोग एवरेज हैं, एवरेज से ऊपर हैं, किसका मार्क्स एवरेज है, एवरेज से ऊपर है, और एक स्टैंडर्ड मार्क्स है मेरा, दैट इज 450। अब 450 है तो इस 450 से अगर आपने ज्यादा लाया है तो आप अबव एवरेज हो, इस 450 से नीचे लाया है तो बिलो एवरेज हो। आपको सिर्फ इस चीज को, ये 450 को ड्रैग करके सिंपली 450 सब में लेके आइए। यहाँ पे जो आपने मार्क्स लाया है इसको 525 की जगह कुछ को 350 कर दीजिए, इसको 250 कर दीजिए और इसे 300 कर दीजिए। अब मार्क्स वाले का यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ही चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे इन सबको हटा दीजिए, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और इसमें भी अगर खर्चीला को चेंज करना चाहते हैं, अबव एवरेज एंड मितव्यय को बिलो एवरेज, एंटर। अब इसको ड्रैग कर दीजिए जस्ट। इज इट क्लियर? यस सर। बेंचमार्किंग आपके हाथ में, आप बेंचमार्किंग कर दो, उससे ऊपर है तो ठीक है, नीचे। अब यहाँ पे 60% 40% वाला भी तो कर सकते थे कि आप कितने 60% है कितने 80% है, इसको यहाँ पे भी इंप्लीकेट नहीं करते, यहाँ पे करते एक एक मार्क्स लिखते। लेट मी ट्राई दिस। बच्चे का टोटल परसेंटेज है 78, then 58, then 85, then 56, then कुछ भी बोल दो, इसको थोड़ा, हाँ, anything which can do, ठीक है। अब if this particular cell, अभी फंक्शन लगाने जा रहा हूँ, if this cell is greater than 60, then my first statement would be first division, bracket closed, and if it is not true, second division, bracket closed, enter। आ गया ना गड़बड़? हाँ देखो यहाँ पे फॉर्मूले में गलती है, just a minute, I am going to improvise it, double quotes, enter। second division, first division, second division, first division, second division, ये एग्जैक्ट 60 से अगर बड़ा हो जाता, एग्जैक्ट 60 61 हो जाता, तो अब वहां पे लेस देन इक्वल टू कर देता तो ये सही हो जाता। अब 61 करोगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एग्जैक्ट ग्रेटर देन 60। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर कर दोगे इसको इज इक्वल टू, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है? 60 पे भी फर्स्ट डिवीजन आएगा। Yes, sir. Are you able to see these changes? यस सर। ठीक है। अब इस पे एक क्राइटेरिया और ऐड कर सकते हैं, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कॉमा कर करके क्राइटेरिया ऐड कर दीजिए कि अगर ये सेल इससे बड़ा होगा तो फर्स्ट डिवीजन, इससे छोटा होगा तो सेकंड डिवीजन, इससे छोटा होगा तो थर्ड डिवीजन। तो आप एक सेल में 3 फंक्शंस लगा के और पूरे मार्कशीट को ड्रैग कर देंगे, कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन, कौन थर्ड डिवीजन है, यू विल कम टू नो। क्लियर? इंसर्ट फंक्शन से भी ये फॉर्मूला लग जाएगा ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंसर्ट फंक्शन से, इफ दिस इज द लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, किस सेल को कितने ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या चाहते हो फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या चाहते हो सेकंड डिवीजन। अगर ये गलत है तो दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा सेकंड डिवीजन, एंड क्लिक ऑन ओके एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
So am I clear with everyone? And look at the time. it's we are going to touch 8 today, and just we are doing, but then also this is very much important, and this was the need of the hour, so that I have extended it. No problem in that. Other things I'm going to cover very fast. Is it okay with everyone? Now I think 2 or 3 functions are there. Oh, it is there. है अभी फटाफट बताओ, otherwise we'll move fast. If function, is it clear to everyone? Yes, sir. चलो 2-3 एग्जांपल भी हो गए, Yes, sir. तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी. देखो मीन एंड मीन आ दोनों में सिंपल यहीं पे दिखा दे रहा हूं, जो मैंने इंप्लीकेट किया थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा. जैसे वैल्यूज हैं, वैल्यूज मिनिमम क्या होता है, नंबर में अगर सिर्फ नंबर में मिनिमम लगाओगे इट विल गिव द मिनिमम नंबर. लेकिन मीना क्या है, मीना टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है. दोनों में डिफरेंस समझिए. एक जगह पे मिनिमम, अगर मिनिमम फंक्शन लगा रहे हो उसमें टेक्स्ट नहीं है तो वो अलग फिगर देगा, टेक्स्ट है तो वो अलग फिगर देगा. इसलिए दोनों को लगा ही दिया जाए तो विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड इट. मिनिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम में यहां से मिनिमम एक बार निकालिए, क्लोज इट. दिस इज 0.9. आपको क्लियर होगा कि इसने टेक्स्ट को छोड़ दिया और इसने 0.9 को मिनिमम ले लिया. ठीक है, इज इट क्लियर? और इसका रेंज भी बढ़ा सकते थे, जो मैंने सिर्फ 12 to 13 लिया है. I can use the entire range. Enter. इसने 0.25, देखो यहाँ पे 0.25 है, इसने ले लिया मिनिमम फंक्शन. अब मैं मीना लगाऊंगा. somebody mic is open, please मीना लगाऊंगा. मीना क्या कर लेगा, इसने टेक्स्ट फंक्शन को भी ले लेना है, टेक्स्ट फंक्शन को भी ले लेना है एंड यू विल क्लोज इट. और अब इसका इंपॉर्टेंस बता. मीना फंक्शन टेक्स्ट को भी डिजिट में कंसीडर करता है. अगर वो ट्रू और फॉल्स हैं तो ट्रू के लिए 1 काउंट करता है और अगर फॉल्स हैं तो 0 काउंट करता है. तो इस पूरे फिगर में प्लीज क्लोज योर माइक. somebody माइक इज ओपन. अवर्णे भारद्वाज साहब. ओके. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ट्रू इज फॉर ट्रू, इट इज गोइंग टू कंसीडर नंबर 1 एंड इफ इट इज फॉल्स इट इज गोइंग टू कंसीडर एज 0. तो इस वाले पूरे रेंज में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना. दो इट इज ए टेक्स्ट बट देन ऑल्सो मीना कंसीडर इट एज ए डिजिट. ट्रू के लिए अलग और कोई डिजिट दोगे. अगर ये फॉल्स की जगह पे कुछ भी लिख दिए तो आपके लिए फिर से 0 दे दे. लेकिन इसी के जगह पे फॉल्स दे दिए तो फॉल्स को वो 0 कंसीडर कर. ये दिख रहा है चेंज? आर यू एबल टू सी दिस? फटाफट. आई डोंट हैव टाइम. मींस वी आर ऑलरेडी अबाउट टू रीच 8 o'clock. So many things I have to discuss. Please tell me, young champions. सब मीना वाला क्लियर नहीं हुआ. हाँ बता रहा हूँ बेटा. Just means I don't know whether you people are senior or junior. Means lots of company people are also there. So I'm means addressing you as a beta. Don't feel offended. If you are my student, then it's all right. If you are some company people are coming from outside, apology for that. Please. जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं आपने देखा होगा कि ट्रू का वैल्यू 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है. ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मीना क्या करता है कि अगर उसमें ट्रू फॉल्स भी है तो उसको ये टेक्स्ट ना कंसीडर करके उसके डिजिट्स को कंसीडर करता है. जैसे मैं फॉल्स को सिर्फ इस वाले को मैं रेड कर रहा हूं. प्लीज वॉच दिस लोकेशन ओनली, दिस वन. और इसका मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको विजिबल. सिर्फ इसको वॉच करना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैं फॉल्स के जगह पे, इसके जगह पे मैं
कोई भी टेक्स्ट लिख दे रहा हूं, जैसे कार्तिकेया, ये दिस पर्टिकुलर थिंग हैज नॉट चेंज्ड, इसमें कहीं ना कहीं इसमें टेक्स्ट, जस्ट मिनट, अब इस पर्टिकुलर में अगर फॉल्स आ जाता, तो फॉल्स का देखो, एक तो ये फॉन्ट साइज भी खुद ही चेंज कर ले रहा है, और फॉल्स को जीरो कंसीडर कर रहा है। इस पूरे डेटा में जीरो इज द मिनिमम नंबर, वो भी फॉल्स का है, ठीक है। तो मीना क्या करता है, मीना आपको ट्रू और फॉल्स को भी डिजिट कंसीडर करते हुए आपको रिजल्ट देता है। लेकिन अगर इसी मीना को इफ यू इम्प्लीकेट इट हियर, यहाँ पे एक मीना फिर से लगा के दिखाता हूं दूसरे डेटा सेट पे, विल कम टू नो मीना इक्वल टू, हालांकि ये आप लोग को बहुत ज्यादा काम कम ही आएगा, वैल्यूज -2, वेयर इज दिस -2, इसने कहीं ट्रू फॉल्स नहीं लिया ना। अब यहाँ पे मेरिसा के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट फॉल्स, false, now this is not considering, again some textual error is there, forget about it, just for you to remind, like true they are going to consider it as 1, false they are going to consider it as 0। min में सिर्फ नंबर्स को वो रीड करेगा, मीना में नंबर्स और टेक्स्ट को भी रीड करेगा, लेकिन टेक्स्ट में भी अगर ट्रू और फॉल्स हैं तो ट्रू को 1 कंसीडर करेगा और फॉल्स को 0 कंसीडर करेगा। दिस इज गोइंग टू बी द लर्निंग। और टेक्सुअल कंटेक्स्ट में पीछे कोई बैकग्राउंड में फॉर्मूला लगाता है, then sometimes this gives an error, but rarely we are going to use। apart from it, a very interesting, two very important, like you don't have numbers, you don't have range of numbers, then we use rand command। rand command gives you, फटाफट जल्दी से कर लो, अदरवाइज मूव, इसमें सिर्फ ब्रैकेट आपको बना के देना होता है, और जितनी बार भी क्लिक करोगे दिस विल गिव यू अनदर रैंडम नंबर। और इफ यू वांट टू रिड्यूस इट्स डेसिमल प्लेसेस, गो टू नंबर के नीचे वाले सेंस में जाएंगे, एंड यू कैन ड्रैग इट विल गिव यू n रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। सिर्फ रैंड टाइप करके दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, इट विल गिव यू एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। और जितनी बार भी क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई ऑपरेशन करो, इट विल चेंज इटसेल्फ। कोई भी ऑपरेशन पूरे सीट में कहीं पे भी होगा, इट विल चेंज इटसेल्फ। जितनी बार क्लिक करोगे इट विल गिव यू अनदर नंबर, दैट इज द ब्यूटी। मतलब कई बार परेशान होते हैं लोग कि मेरे पास डाटा नहीं है, मुझे डाटा पे काम करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं ऐसे ड्रैग करके n नंबर, मतलब 100 नंबर, 200 नंबर, 500 numbers, random numbers I can generate, that is a possibility। so this is the beauty of rand। अब इसके अलावा एक और खूबसूरत है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन, किस रेंज के बीच में आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, किस रेंज के बीच में। सो यूज RAND बिटवीन, डबल क्लिक, बॉटम लिमिट वुड बी 1, अपर लिमिट bracket, upper limit would be 100, click and 7। now whenever you click on enter it will change itself। अब ऐसे 100, आप कुछ भी 100 यहाँ पे ड्रैग करके 100 नंबर जनरेट कर लो, it will give you 100 random numbers। is it visible to everyone? ये खुद से रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, लेकिन रैंडम नंबर कितने के बीच में जनरेट करके देगा, 1 to 100। is it clear? Yes, Yes, sir. sir. So this when people usually complain that I don't have database, I don't have numbers, just give rand between command and it will give you the numbers। system ही आपको वो नंबर दे देगा। अब इसको सबसे बड़ा चीज, अगर आप एक फ्रेश सीट पे देखते हो तो इसको ज्यादा और अच्छा समझ में आता, क्योंकि जितने रिसर्चर होते हैं उनको यूनिफॉर्म रैंडम डाटा चाहिए होता है। एक सेल सेलेक्ट कर लिया, सॉरी, सेल सेलेक्ट कर लिया, रैंड बिटवीन इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, और इससे बोला कि मुझे 1 से लेके 100 नंबर तक का आप रैंडम नंबर दे दो,
और आप इस वाले जहां पे आपने फॉर्मूला को इम्प्लीकेट किया है, यहाँ से 100 नंबर तक अगर आप ड्रैग करोगे, इट विल गिव यू 100 रैंडम नंबर्स। जितना भी लंबा ड्रैग करोगे, इट इज 32। इफ यू वांट टू 50 रैंडम नंबर्स, इट विल गिव यू 50 रैंडम नंबर्स। इफ यू वांट टू 80 नंबर, जितना भी ड्रैग करके आप यूज कर चाहते हो, ये भी कर सकते हो। दूसरा, इसी चीज को करने का दूसरा तरीका होता है RAND, एंटर। I want rand between, bottom number is 1, top number is 100. It is also going to give you the same thing. लेकिन देखिए दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होगा, दोनों रैंडम नंबर्स हो। जितनी बार भी क्लिक करोगे, they'll keep on changing themselves. यहाँ पे भी कुछ काम करोगे, it will change it. और जितनी बार भी मैं सीट पे काम करूंगा, वो डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। तो हर बार ये नया डिजिट क्रिएट करके देगा, and you can work on that. Now, this is सर control. इसको 100 से ऊपर भी ले सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, मैं 1000 2000 अप टू यू। मतलब जब डेटा जनरली बोलते हो ना कि मुझे डेटा सेट चाहिए, मुझे कहीं से डेटा मिल जाता तो मैं उस पर काम करता, तो ये तरीके हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के। तो आप n नंबर ऑफ नंबर्स यू कैन जनरेट। SQRT, SQRT क्या करता है? SQRT किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देता है। स्क्वायर रूट कैसे निकाल देगा? जस्ट हियर, अब SQRT is 7, सॉरी मैं तो 7 क्लिक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 49 ब्रैकेट क्लोज 7 इक्वल्स टू SQRT डबल क्लिक ब्रैकेट स्टार्ट। मैं सिर्फ वो इजी वाले एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन कोई भी डिजिट अगर आप देना चाहते 81 9, तो ये आसान वाले दे रहा हूं। अब यहाँ पे इक्वल्स टू SQRT double click, give anything 1 1 2 and see the result. This will come in decimal places, and if you want to reduce the decimals, use this particular tab. So SQRT is going to give you the square root. Now comes subtotal. यहाँ तक में किसी को दिक्कत? This is again interesting thing. No, sir. Yes sir, next. Next subtotal, but subtotal I think some figure was there, it is missing. यहाँ पे सबका आइटम वगैरह था, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने कुछ सेल डिलीट किए थे ना, यहाँ पे सबके आइटम्स और उसके प्राइसेस थे, क्वांटिटी आइटम प्राइस। लेट मी चेक इफ दैट इज ओपन इन सम डिफरेंट सीट। ऊपर वाले एक्सरसाइज की वजह से मैं साफ करने के लिए ना उसको डिलीट किया मेरे ख्याल से। डेटा सेट डे 4, if it is available in this, let me check. This is the data. अच्छा, इसी में मैंने डिलीट कर दिया। This is something different. Don't. इसे तो पता ही नहीं चलेगा कैसे डेटा। जस्ट गिव मी सम टाइम। मैंने यहाँ पे भी अपलोड किया था। दिस इज द केस। डे 4 self formulas and functions. This is sheet. This sheet is also available. And let me close the available sheet and then I'll convert. Excel formulas and functions. इसको मैं close कर दूं. Don't save. Then go download. And this is the way through which you can also download it and start working. Excel formulas and functions, subtotal.
enable editing. Now seat 1, seat 2. People have already done this. यही सीट है ना? अब देखो सब टोटल वाले में जाके देखना है कि वो चीजें हैं कि नहीं. इफ लॉजिकल तक ही हैं, then few data is also missing here. Let me check. This is the thing. ये है save a copy. ये उस वाले डेटा से देखो वेरी कर रहा है. यहाँ पे SQRT बता दिया था, सब टोटल बताना था. सब टोटल में वो उस डेटा में ये रेट, क्वांटिटी और अमाउंट मिसिंग था. अब देख पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, बस थोड़ा सा और टाइम लूंगा. देन आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप. लोग का आवाज थोड़ा स्लो. नाउ यहाँ पे इन चीजों पे जब इम्प्लीकेट करते हो, देन just if you want to see this CD का ये आ रहा है. ये CD का ऐसे नहीं आता. इसको पहले आप एक पर्टिकुलर फ्रेश यहाँ पे जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर. छोटे में काम कर लेंगे. बेसिक डिनोमिनेशंस तो आपको दिख रहे होंगे. बेसिक डिनोमिनेशंस में इफ यू just use auto sum, it will give you this particular figure. But if you implicate any data tab, data filter लगा दिया और इसमें किसी एक आइटम पे जाते हो, if you want to like use CD और CD के सब वेरिएंट पे, तो यहाँ पे जो डेटा नीचे में समेशन में आता है वो समेशन आपको वैल्यू नहीं देता. लेकिन जहां पे सब टोटल लगा रहता है वो सब टोटल जितने वैल्यूज हैं सिर्फ उसी के समेशन को देता. गेटिंग माय पॉइंट? ये यहाँ पे सम, जैसे मैंने यहाँ पे सम लगाया, तो अगर मैं CD को यूज कर रहा हूं तो CD का यहाँ पे सम देना चाहिए था ना, जब टोटल सम यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है. यहाँ पे जब सम करोगे तो पूरा टोटल सम. Are you there? Very important link is there. So please be there. Otherwise you'll miss very important thing. यहाँ पे जब मैं इस वाले पे अगर आप फिल्टर लगाते हो और फिल्टर लगाने के बाद if you go see the difference, if you go to CD, click OK, it will give you exactly the same amount which CD के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेकिन सब CD में जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके सम को ये नीचे कैलकुलेट करके दे देगा 4500. बट इफ यू डू द सेम थिंग इन दिस, यहाँ पे फिल्टर लगाओ और यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे CD कलेक्ट करो. सो एक तो वो सम फिगर गायब हो जाएगा और दूसरा सम फिगर गायब होने के बाद वो एग्जैक्ट फिगर भी मैच नहीं करेगा. अगर आप ये ऑटो सम का फंक्शन भी गायब करके, अगर आप if you are going to use SUM, double click, drag this number, close this bracket, enter, और अब भी CD अगर लेके जाते हो तो भी आपको वहां पे सम नहीं दिखेगा. दिख रहा है डिफरेंस? तो अब चाहते हो कि मेरे पास कोई ऐसा टैब हो जैसे यहाँ पे ये एक तो टोटल दे रहा है, जो यहाँ पे टोटल दे रहा है, ये यहाँ पे भी टोटल दे रहा है. जब मेरे पास पूरी लिस्ट है लेकिन उसमें से हाफ लिस्ट अगर हो रहा है तो उसका भी सम मुझे दे. तो उसका सम देने के लिए यू हैव टू यूज सब टोटल. अब सब टोटल को यूज कैसे करते हैं? जस्ट क्लिक सब टोटल, दिस इज कमिंग. और यहां पे आने के बाद यहां पे जाके देखोगे 9 नंबर 9, क्लिक ऑन दिस, ये सम करेगा सम. उसके बाद भी
आप चाहते हो कि काउंट करे, स्टैंडर्ड डेविएशन करे, मैक्स करे, मिन करे, प्रोडक्ट करे, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन सैंपल, जो करना चाहो. Right now I want to use sum. Just click on this. It will automatically take 9. 9 मतलब वो sum का symbol है 9, जो सब टोटल वैल्यू यूज करता है. And then close the bracket, enter. Now these two figures are one and the same. Now if I'll go to CD, are you able to see this change? Yes. कुछ डिफरेंस पता चला? सब टोटल से आइटम वाइज समेशन निकल पाता है, बट इफ यू डायरेक्टली समेट इट, सिंपल सम करेंगे तो वो आइटम वाइज सम में वेरिएशंस नहीं दिखा. आपके सामने गायब भी हुआ, वो भी मैं आपने देख लिया. एक जगह सम दिख रहा है, दूसरी जगह नहीं दिख रहा. और अगर टोटल सम दिखता है लेकिन आइटम वाइज सेल्स नहीं दिखते. अब दूसरा सीडी के जगह पे आप कीबोर्ड कर लो, इट विल गिव यू दिस. कीबोर्ड के बाद अब यही नहीं, मीन्स अगर आपने सब टोटल लगाया हुआ है, डीवीडी लगा दो. डीवीडी के बाद अगर आप मोजर बियर लगाना चाहते हो, मोजर बियर लगा दो. एक एक आइटम का भी प्राइस वो निकाल के देगा, बिकॉज आई हैव इम्प्लीकेटेड सब टोटल. Is it clear to everyone? And believe me, this is bit difficult. Means today whatever things people have discussed is little bit difficult, but if you keep on watching these things on a regular basis, ultimately it is going to ease out your task. Am I there? Can you suggest here? Are you people there? Very less people are there, so I'm going to. Yes, sir. Soon I'm Yes, going sir. to. Yes, sir. हाँ. I'm Yes, there. sir. सब टोटल समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, तो आज के लिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ. मतलब अब नया टॉपिक अभी स्टार्ट करना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. एक Yeah, छोटा सा yes, sir. इंटरेस्टिंग चीज बता दे रहा हूँ. जैसे स्क्वायर निकालना, थर्ड रूट मतलब आप किसी का ट्रिपल टाइम्स जो पावर निकालना चाहते हो, तो पावर कैसे निकलता है, पावर Cube. कैसे यूज करता है. क्यूब निकाल रहे हो या फिर स्क्वायर निकाल रहे हो, या फिर उसपे मतलब कितने में 5 to the power 5 निकालना चाहते हो, 5 to the power 100 निकालना चाहते हो, तो उसको कैसे निकालते हो? सिंपल, मेरे पास 10 है, 10 को इक्वल्स टू सेल एंड एक 6 डिजिट जो होता है, 6 नंबर जो होता है कीबोर्ड में ऊपर वाले पैनल पे, उसको शिफ्ट के साथ एक कैरेट बोलते हैं, कैरेट. और उसके बाद मुझे 2 3 4 5 जितने भी टाइम्स चाहिए, मैंने 2 पे क्लिक किया एंड इट विल गिव यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. मैं इसके जगह पे 3 करूं तो इट विल गिव मी 10 मल्टीप्लाइड 10 to the power 3. फिर मैं इस पे 10 पे 10 करूं तो इट विल गिव मी 10 to the power 10. छोटा सा चीज है, क्लियर है सबको? Yes, No, sir. no, sir. नो सर, No, sir. Who No, is no sir. sir? चलो फिर से बता रहा हूं. सिंपल, क्लिक ऑन इक्वल्स टू, गो टू दिस पर्टिकुलर सेल. 6 कीबोर्ड पे देखना, 6 जो एक नम लॉक पे 6 होता है वो नहीं, ऊपर पैनल पे होता है जहां पे F1 F2 F3 होते हैं, उसके नीचे 6 डिजिट पे न्यूमेरिक वैल्यू पे शिफ्ट के साथ कैरेट साइन होता है, वो प्रेस करो और 3 4 5 6 जो भी टाइप करोगे वो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा. 10 to the power 3 निकाल के दे देगा. क्लियर है? इसी चीज के लिए दूसरा फंक्शन भी होता है. ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 इज देयर, टाइप इक्वल्स टू पावर, just click on number and what power do you need. मैं 10 to the power 10 निकालना चाहता हूं, क्लिक करो, ओके करो. क्लियर?
ये छोटा सा एक्सरसाइज है, मतलब बट इट विल ईज आउट योर टास्क क्वाइट वेल। मतलब आपके पास whatever work is going to be there, at few places you need a square, cube, then power 4, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 5 to the power 2, 5 to the power 6. So whatever kind of requirement would be there, you are going to implicate these things at that point of time. Am I clear to everyone? बहुत लैग हो रहा है। Sorry, what happened? बहुत लैग हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं अब आ अब रही। अब अब क्लियर है? अभी क्लियर है सर। लास्ट का 2 लाइन हम क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बता रहा हूँ। बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे कैरेट का साइन यूज किया और उसके पावर को इंक्रीज किया, उसी तरह से यहाँ पे पावर के बाद आप एक तो करके दिखा दे रहा हूँ। पावर, डबल क्लिक, किसका पावर चाहिए और किस किस लेवल तक पावर चाहिए। 10 टू द पावर सपोज 5 चाहिए मुझे, मैं 5 टाइप करूंगा, एंटर करूंगा और मुझे वो वैल्यू निकाल के देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज हम लोगों ने सीखा। और सर, सिर्फ वो तो सही है। ये जो E277 ये क्या आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है। E277 अरे वो जो सेल सिलेक्ट किया उसका आया था सर, वो कहाँ जो पे? सेलेक्ट किया था ना सेल उसका वो जो हाँ सेल सेलेक्ट है सामने वो आता है। अच्छा, ये तो एड्रेस है यार, ये तो मतलब ये एड्रेस जहां से मैंने सेल सेलेक्ट किया था, इसका एड्रेस है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये किसी पर्टिकुलर सेल का वैल्यू लेता है ना, तो इस सेल का अच्छा एड्रेस अच्छा, है। ओके सर। समझ नंबर गया। भी ले सकते हैं सर कोई भी। तो वहां पे आप डायरेक्टली नंबर मेंशन करके भी चल सकते हो, सेल भी सेलेक्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं, जिस नंबर का चाहिए वो दे देगा। लेकिन दीज आर द स्मॉलेस्ट टूल्स विच यू आर गोइंग टू यूटिलाइज। और if you use all these things more frequently, ultimately you will means keep yourself at best place to use all these things which I have discussed today. So keep on visiting, keep on using these things. I have already shared this particular file. Today also I'm going to just I'll upload it once again. जो हम लोगों ने काम किया वो भी वहां पे आप देख सकते हो। तो इस पूरे फाइल के साथ you are going to learn, you are going to implicate things, and ultimately it is going to benefit. Our pending work remained like data visualization, data validation. So tomorrow we are going to start with data visualization. So tomorrow we'll move bit fast. जितने बच्चे भी रहेंगे लेकिन we'll move really fast. Let me stop sharing because I'm not going to start any new topic at this point of time. It is already 8:20. So it would be better if any of you are having any query, you can ask. या एक इंटरेस्टिंग जो मैंने बोला था वो बता देता हूँ। लाइक जो हम लोगों ने डेटा एनालिसिस टूल पैक देखा था, उस डेटा एनालिसिस टूल पैक को ऐड ही कैसे करते। is this screen visible to you everyone? Yes, sir. Yes, sir, it is visible, sir. Yes, go to file tab, go to file, go to options, एकदम नीचे में मिलेगा। कुछ लोगों को ये ऑप्शन ना, मतलब पुराने वाले वर्जन में जाओगे तो ऊपर ही मिल जाता है, कुछ लोग को ऑप्शन नीचे में मिलता है। ऑप्शन नीचे में मिलने के बाद यू क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे एड इन्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे तो उस वाले लिंक को क्लिक कर दोगे। 2019 में यहाँ पे एड इन्स आ रहा है, तो यहाँ पे एड इन्स आएगा, इसमें देखो एनालिसिस टूल पैक, क्लिक गो क्लिक करोगे, इट विल आस्क एनालिसिस टूल पैक बीबीए, यूरो करेंसी टूल और सॉल्वर। तो आप एनालिसिस टूल पैक बीबीए यूरो करेंसी नहीं भी करोगे बिकॉज वी डोंट यूज यूरो करेंसी टूल्स, सिर्फ एनालिसिस टूल पैक बीबीए विजुअल बेसिक्स के साथ सॉल्वर एड-इन्स, क्लिक ओके। If you click OK, these two things are going to be added. Let me annotate where you are going to see this analysis tool pack. You'll get it. You'll get it at this place. Data analysis tool pack and solver. So I'm going to use these tools as well. But these are very interesting and very helping tools. जब यूज करूंगा डेटा सीक का तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे काम करता है। सो
I'll request you, इसको कैसे यूज करते हैं वो भी आपने देखा हुआ था, याद है ना? डेटा एनालिसिस टूल पैक को हम लोगों ने जो यूज किया था, आप लोगों ने देखा था। इज इट स्टिल फ्रेश या मैं दिखाऊं उसको? देखो आपके सामने एक डेटा सर यहीं दिखा पे है। दीजिएगा। ये डेटा, जस्ट क्लिक इट, मेक इट सेपरेट कॉपी, यहाँ पे आ गया। नाउ आई नीड जितने जितने न्यूमेरिक वैल्यू हैं, इन न्यूमेरिक वैल्यू का, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा जो टेक्स्ट वैल्यूज है ये नहीं लेता, टेक्स्ट वैल्यू के साथ डेटा एनालिसिस नहीं करता। गो टू डेटा एनालिसिस टूल पैक, it will give you a separate window. Please close your mic. I don't know, Avarne Bhardwaj sir. हाँ, descriptive statistics, click on OK. In descriptive statistics you can give the data range. I have already given this data range. Label in the first row, क्योंकि मेरा label first row में है, I have already given it. I want in new worksheet, or I can use output range. Where do you want this output to be given? I can give, click on this, and in this you can give them the range. Then summary statistics, confidence interval. Ultimately जब confidence interval के largest smallest हम लोग को तब जरूरत पड़ता है जब hypothesis testing वाले tools को use करते हैं, T test, F test, Z test, तब, और you can see the result. With a click of button, you are going to get all these things. Rate, quantity, amount, everything is going to be in front of you. Rate का mean, median, mode, standard deviation, skewness, kurtosis, variance, everything. Then quantity, यहाँ पे तीन थे, rate है, quantity, amount है, इन्हीं का तो मैं निकालना चाह रहा था। उस पे सारे descriptive statistics के result you are going to get in one page. Are you able to see this? Yes, sir. Yes. So is it not a very interesting tool? Means apart from you can directly calculate mean, median, standard deviation by using different formulas, but then also if you want to get all these details at a single click, this is the tool, data analysis tool pack. So lots of interesting tools are there in Excel. It is up to you whether you go to that particular destination and work. Let me see one more interesting thing. Go to option, then quick access toolbar. Quick access toolbar. Form यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है? Form is not there. Then popular command. Go to. Let me close this particular thing. Popular command, commands not in the ribbon. यहाँ पे कोई form, फाइल टाइम है form F से आएगा, form, this one. अब देखो इतना इंटरेस्टिंग चीज है, इतना इंटरेस्टिंग, cannot imagine. अब ये यहाँ पे जो टैब्स हैं वहां वाला यूज करना चाहते हो इसको, या फिर जस्ट ये पुराने वाले में, तो ऐसे ही ऐड करके ये बोलता है फॉर्म रीडू अंडू। मेरे पास ये कहाँ पे चला गया? फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट। ओके, यहीं से करते हैं। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज देखना। मैं एक नया डेटा सीट लेता हूं और इसको कॉपी करता हूं, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। अब इन सारे आइटम्स को क्लिक करके मैं फॉर्म्स मेरा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड हो चुका है। क्विक एक्सेस टूल बार पे अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम्स, कंपनी, जो मैंने यहाँ पे दिए वो आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। सीरियल नंबर 1, आइटम नंबर 1, कंपनी नेम SMS, रेट 25, क्वांटिटी 30, अमाउंट मीन्स विच एवर अमाउंट यू वांट टू फिल, लाइक क्वांटिटी और इसको दोनों को मिला के 750, एंटर।
अपने आप आ गया? Yes, yes, sir. है इंटरेस्टिंग? Yes, sir. कभी डेटा एंट्री एक बनाना हो, टैब बनाना हो कि मुझे डेटा एंट्री एक बार में मैं डेटा सब एंटर करते चला जाऊं, यहाँ पे क्या कर सकते थे? एक कॉलेज को क्या चाहिए होता है? कॉलेज को चाहिए होता है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, देन एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट, देन फी डिपॉजिटेड। ये कुछ बेसिक चीजें। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू गो टू इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब पे इसने ये सारी चीजें पिक कर लिया। इसने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम दिख रहा है, और एंटर करोगे। अब सीरियल नंबर पे कोई भी डेटा एंटर करोगे, सीरियल नंबर 1, स्टूडेंट नेम कार्तिक, एड्रेस वैष्णो बिहार, मोबाइल नंबर 78, देन मोबाइल पेरेंट कुछ भी कर दो, ठीक है, फी डिपॉजिटेड 25,000। आ गया? आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, विजिबल है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Visible है। चलो, ये उनको जो अभी तक टिके हुए हैं, ये उनके लिए बोनस। 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने बताए, डेटा एनालिसिस टूल पैक का, और एक से जो डेटा एंट्री प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं, या तो हम उसको विजुअल बेसिक्स के थ्रू बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्म के टैब को ही ऐड करके बना सकते हैं। सो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू. So we are almost done. Today I'm going to share that quiz link. Let me stop this sharing first, and then let me stop the recording.